औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। ये ब्लैक ब्लड कौन है? ये ब्लैक ब्लड नाम से कौन इंटर कर रहा है? हेलो। सर पता नहीं, कोई बॉय है वो। हाँ, तो पूछ रहा हूँ ना मैं उसको, कौन है कौन? ये ठीक है। टुडे we are going to study the structure and bonding chapter. Already some of the part has been covered at 11th 12th standard. Some of the part it is to be covered here. 11वीं 12वीं के अंदर बहुत सारा पार्ट आपने इसका स्टडी किया होगा. Let us look at the types of bond and what is the bonding. Bonding nothing but it is the force of attraction that keeps together or binds together two atoms, two ions or two species in a molecule. ठीक है, ये ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बाइंड करता है दो एटम्स को. जैसे ये दो एटम्स दिख रहे हैं आपको, इनको बाइंड करता है. दो आयंस दिख रहे हैं आपको, उनको बाइंड करता है. ठीक है, और ये दो स्पीसीज दिख रहे हैं आपको, NH3 BF3. ठीक है, ये NH4 के अंदर में H प्लस और NH3. ठीक है, दो स्पीसीज है ये. NH4 आयन है, इसके अंदर में टू स्पीसीज दे आर बॉन्डेड टुगेदर, H प्लस एंड NH3. ठीक है, सो इन दिस वे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which binds together or which keeps together two atoms or ions or species together in a molecule, that is called as a chemical bond. Now there are three types of bonds. One of them is covalent bond. Co means sharing. This co means sharing. Valency, valence electrons, outermost electrons. ठीक है, तो such type of bond it is formed by sharing of electrons. Valence electrons here, valency means valence electron means outermost electrons जो है ऑर्बिट में के outermost electron, those are shared to form a bond. One atom each gives one electron for formation of bond. For example, this hydrogen. Hydrogen is having one electron, this hydrogen is having one electron. Both electrons they are shared together and a bond is formed. Chlorine, it has one electron, those two electrons they are shared together. Okay. Covalent bond, it is found in organic compounds. For example, CH4. For example, you take the example of
CH4 here. You take the example of CH4. Now here are four bonds. One carbon, it is linked to, it is joined to four all other hydrogen bonds. Okay, so this bond is covalent type of bond. So such type of bond which is formed by sharing of the electron pair, that is called as the covalent bond. For example, again, if you take another example of CH3Cl, methyl chloride, then it is also CH3Cl, three bonds and one bond. Three CH bonds are there, one CCl bond is there. All bonds, all four bonds, they are covalent bonds. Now, ionic bond. Here, what happens in ionic bond, two oppositely charged ions, they are binded together, or they are kept together in a molecule. For example, sodium chloride. So such type of force of attraction which keeps or which binds together two oppositely charged ions, it is called as the ionic bond. Now how these ions they are formed? These ions they are formed by the mutual transfer of the electron from one to another. Suppose this sodium is there, it is having electronic configuration 281. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 281 इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होता है. यानी आउटर में शेल के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक इलेक्ट्रॉन. ठीक. क्लोराइड इट हैज़ 287. Atomic number is 17. 287. There are 7 electrons in the outermost shell. Outermost shell के अंदर में 7 electrons. In order to complete octet, it requires 7 electrons, isn't it? Sodium will require 7 electrons, and chlorine will require 1 electron. So what happens here? This sodium donates 1 electron to chlorine, and it becomes 2,8. Okay, it acquires the electronic configuration as 2,8. ठीक है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाता है? 2,8. 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और क्लोराइड का क्या हो गया? 288. 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे आउटरमोस्ट शेल के अंदर में. सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ब्लैक ब्लड, क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? ब्लैक ब्लड. हेलो, चला गया. okay. In this way, ionic bond, it is formed by the transfer of the electron from one atom to another atom. ठीक. आयंस दे आर फॉर्म्ड. आयन किस तरह से फॉर्म होते हैं? बाय ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. दिस रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट. इट रिक्वायर्स 7 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट. ठीक है. तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर आने से रहे, एक इलेक्ट्रॉन को बता ये ट्रांसफर करके 2,8 बन सकता है, और ये 288 बन जाता है. ठीक है. तो आयनिक बॉन्डिंग इज देयर इन आयनिक कंपाउंड्स, साल्ट्स वगैरह, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, ऐसे कंपाउंड्स के अंदर में आयनिक बॉन्डिंग होती है. ठीक. कम टू नेक्स्ट.
coordinate bond. Now here also bond it is formed by the sharing of the electron. Coordinate covalent, कुछ कुछ लोग उसको coordinate covalent भी कहते हैं. So what happens here? Here also there is sharing of electron pair between two atoms. ठीक है, जैसे NH4 आपको दिख रहा है, इसमें H प्लस और NH3 ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है. ठीक है, NH3 BF3 ये दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो रही है. लेकिन व्हाट हैपन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन और शेयरिंग दे आर डोनेटेड बाय वन एटम ओनली. ठीक है, वन एटम इज इलेक्ट्रॉन रिच और अदर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन के लिए कितने, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन देने का काम एक ही एटम करता है. ठीक है, वन एटम इट donates both electron required for the formation of bond. ठीक है, another atom accepts those electron. So atom which donates electron it becomes positively charged. जो डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, so NH4 is there, ammonium ion. H plus is electron deficient. So both electrons require for bond formation in NH4 plus. NH4 में 2 चीज़ है, एक H प्लस है, दूसरा NH3 है. ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है. NH3 इट इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है जो अनयूज्ड है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर में, जो अभी तक यूज नहीं हुई. नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा से एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होती है. ठीक है, सो दैट लोन पेयर इट इज डोनेटेड टू H3, दिस H. ठीक, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. तो ये क्या करता है, NH3 डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन NH3 एंड H प्लस. इन दिस वे अमोनियम बॉन्ड इज फॉर्म. अमोनियम आयन इज फॉर्म्ड. ओके, दूसरा एग्जांपल है बॉन्ड बिटवीन NH3 एंड BF3. NH3 हमने देख लिया है, इसके ऊपर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है. इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज अनहाइब्रिडाइज्ड. हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो पार्टिसिपेट नहीं होते ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर है. और BF3 इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड. ऑल बोरॉन कंपाउंड दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन हंग्री कंपाउंड्स. ठीक है, उसके अंदर आप उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट ऑक्टेट के अंदर में आता है, 6 स्टेट है उसके पास इलेक्ट्रॉन का. ठीक, तो इस तरह से 3 टाइप के बॉन्ड्स है हमारे पास. एक तो कोवैलेंट है, दूसरा आयोनिक है और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज देयर, बट फॉर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर both electrons required for the formation of bond they are donated by one atom only. For example, bond between NH3 and H plus forming NH4 ammonium ion. Bond between NH3 and BF3. Now localized and delocalized bonds. कोवैलेंट बॉन्ड में भी लोकलाइज और डीलोकलाइज. लोकलाइज यानी एक जगह पर रुका हुआ, और डीलोकलाइज यानी जो एक जगह पर रुकता नहीं. डीलोकलाइज बेंजीन वगैरह के अंदर हम देख चुके हैं किस तरह से डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है. ठीक, सो केमिकल बॉन्ड्स दे आर फॉर्म व्हेन टू न्यूक्लियाई शेयर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम. ठीक है, हाउ ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, टू न्यूक्लियाई शेयर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. 2 न्यूक्लियाई के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो जाती है, उसकी वजह से ये बॉन्ड तैयार होता है. Now the bonds are considered combination of overlapping one electron atomic orbitals. इसके अंदर में क्या होता है, हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और ओवरलैप होकर ये बॉन्ड तैयार होता है. ठीक है, जैसा हाइड्रोजन के अंदर हमने देखा है कि हाइड्रोजन का एक 1s1 ऑर्बिटल है,
एक इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल के अंदर, दूसरे हाइड्रोजन के अंदर 1s1 एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ओवरलैप हो जाते हैं और इस तरह से बाय एस ओवरलैप देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट वी से देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है वो? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, दिस बॉन्ड्स आर कंसिडर्ड कॉम्बिनेशंस ऑफ ओवरलैपिंग वन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, द बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर कन्फाइंड टू ए रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब ये बॉन्ड कहाँ तक रहता है? रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के बीच में जो रीजन है उससे हटता नहीं। ठीक है, वहाँ तक कि महदूद रहता है, वहाँ तक कि वो कन्फाइंड रहता है, वही उसकी बाउंड्री होती है। जैसे दो एटम है ए और बी, तो दोनों के बीच के अंदर में इलेक्ट्रॉन पेयर रहती है, दैट इज कॉल्ड एज लोकलाइज्ड बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इट इज कॉल्ड एज लोकलाइज्ड बॉन्ड, मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर forming bond it is located at one fixed place। ओके, जो पेयर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो दोनों के बीच में एक जगह पर फिक्स जगह पर रुकी हुई है, इट इज लोकलाइज्ड, उसकी एक परमानेंट जगह है। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा हाइड्रोजन के बीच में, क्लोरीन के बीच में CH4, इसके अंदर भी इस टाइप के बॉन्ड्स। अब डीलोकलाइज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल। व्हाट आर डीलोकलाइज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? ये ऐसे टाइप के इलेक्ट्रॉन्स है, आयन में भी हो सकती है, सॉलिड मेटल में भी हो सकते हैं। दे आर नॉट एसोसिएटेड विथ सिंगल एटम। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों के बीच में एग्जैक्टली लोकेटेड है इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉट एसोसिएटेड विथ सिंगल एटम और कोवैलेंट बॉन्ड। एक एटम के साथ वो फिक्स नहीं है, एक जगह पर फिक्स नहीं है। ठीक है, denuclease bonding electrons are electrons in a molecule that are not associated with a single atom और कोवैलेंट बॉन्ड। एक ही कोवैलेंट बॉन्ड के साथ में वो लगे हुए नहीं है। ठीक है, वो मूव होते हैं यहाँ से, वो डीलोकलाइज यानी लोकलाइज नहीं है, एक जगह पर लोकल नहीं है, फिक्स प्लेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन बेंजीन मॉलिक्यूल द delocalization of electron is indicated by circle। ये देखते हैं हम, ये 3 पाई बॉन्ड्स है यहाँ पर, 1 2 3 पाई बॉन्ड्स है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये लोकलाइज नहीं है, ये दिख रहे हैं आपको लोकलाइज नहीं है, ये मूव होते हैं, ये पोजीशन के अंदर में है। ठीक है, कभी ये पोजीशन के अंदर भी चले जाते हैं, और दोनों का मिक्सचर क्या बनाते हैं हम? रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, जिसके अंदर में बीच में छोटा सा सर्कल हम बनाते हैं। ये बॉन्ड हट जाते हैं, बीच में से छोटा सा सर्कल। बीच में से छोटे से सर्कल का मतलब ये है कि जो ये 1 2 3 पाई बॉन्ड्स मीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है दे आर मूविंग ओवर द होल रिंग। ये पूरे कार्बन एटम के साथ में, कार्बन एटम के ऊपर क्या हो, घूम रहे हैं। ये हेक्सासाइक्लिक रिंग जो है, हेक्सागोनल रिंग के ऊपर ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए पहले केस में जो हमने देखा था कि कार्बन को बिल्कुल लगे हुए हाइड्रोजन, पहले केस के अंदर में लोकलाइज के अंदर हमने क्या देखा है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो एक ही जगह पर है, फिक्स पोजीशन। ठीक है, तो ये देख रहे हैं हम, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये यहाँ पर आपने देखा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, अब वो कहाँ गया, ये पोजीशन में आ गए। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ थी, वो अब यहाँ पर आ गई, यहाँ दिख रहा है आपको। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ गई। ठीक है, यानी मूव हो रहे, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। ठीक है, so delocalized bonding electrons, they are the electrons which are not fixed or associated with a single atom or covalent bond। एक कोवैलेंट बॉन्ड से वो फिक्स नहीं है, एक कोवैलेंट बॉन्ड की जगह पर फिक्स नहीं। फॉर एग्जांपल इन बेंजीन मॉलिक्यूल देयर इज delocalization of electrons।
6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमने इससे पहले देखा है डिटेल के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर वगैरह उसका, ये किस तरह से पूरे हेक्सागोनल रिंग के ऊपर घूमते रहते हैं, ठीक है। ए मॉलिक्यूल विथ डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मोर स्टेबल देन ए मॉलिक्यूल ऑफ लोकलाइज्ड बॉन्डिंग, ठीक है। डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, we are possible to draw the resonating structure, and when molecule is having more than one resonating structure, such type of molecule is said to be more stable, उसके अंदर रेजोनेंस एनर्जी भी कुछ आ जाती है, ठीक है। इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर में इस टाइप के डीलोकलाइज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दोज मॉलिक्यूल्स दे आर मोर स्टेबल। Now, inductive effect. Reaction may occur, may not occur, depending upon the density of electrons at site of reaction in the substrate. रिएक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, काय के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द साइट ऑफ रिएक्शन इन द सबस्ट्रेट। उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर में जहां पर आपको अटैक करना है, ठीक है, नए एटम का, ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है इसके ऊपर रिएक्शन डिपेंड करती है, ठीक है। डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द साइट, एट द पॉइंट ऑफ रिएक्शन इन द सबस्ट्रेट, जिस पॉइंट के ऊपर रिएक्शन होती है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ज़्यादा है या नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मुतासिर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्शन मीन्स पोलैरिटी, इसमें क्या होता है, पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ये देख रहे हैं अपन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, इसमें क्या है, हियर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, सो इट विल पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, देयरफॉर पोलैरिटी इज प्रोड्यूस्ड। ये दिख रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पर अट्रैक्ट हो गई, क्लोरीन की तरफ ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर थी, जो एग्जैक्टली लोकेटेड एट द सेंटर होना चाहिए थी, इट शुड बी लोकेटेड एट द सेंटर, बट ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम, इट विल पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। इस तरह से पुल करेंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ चली जाएंगी, ज़्यादा क्लोरीन की तरफ, इसलिए ये इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इस तरह से पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो कहाँ पर होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसे मॉलिक्यूल्स में जहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विच फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड्स, दे आर seldom shared equally, very rarely shared equally between two atoms। बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों की शेयरिंग इक्वल हो। शेयरिंग इक्वल कब हो सकती है, जब एक जैसे दो एटम हो, जैसे दोनों कार्बन एटम्स है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, इट विल बी लोकेटेड एग्जैक्टली एट द सेंटर। हाइड्रोजन एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, इट विल बी लोकेटेड एट द सेंटर, ठीक है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं वो एग्जैक्टली एक जगह पर हो, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्ट हो, बीच के अंदर में हो, ये बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, बिकॉज डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। दो एटम अगर है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अलग अलग होती है, इसके वजह से क्या होता है, डिफरेंट पावर ऑफ अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड, ठीक है। दैट इज डिफरेंट पावर ऑफ अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन, दोनों की पावर इलेक्ट्रॉन अटैक करने की, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, अलग अलग होती है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, they are shifted more towards, or they are attracted more
टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे यहाँ पर दिख रहा है क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे, तो दिस इंट्रोड्यूसेस अ सर्टेन डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन द बॉन्ड। ड्यू टू ऑल दिस प्रोसेस, polarity charge is created on the molecule. One pole it becomes positively charged, all other pole becomes negatively charged. The more electronegative atoms acquires a small negative charge here, chlorine it will acquire delta negative charge. Less electronegative atom acquires a small delta positive charge. Consider the carbon chlorine bond. Chlorine is more electronegative, it will become negatively charged with respect to carbon atom. This is the structure 1, 2 and 3. So what is in structure 1 indicate that relative charges on the two atoms. दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर 1 के अंदर रिलेटिव चार्ज क्या है, एक के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, एक के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इन टू द एरो हेड प्लेस इन द मिडल बॉन्ड इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रॉन। इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर हो रहे हैं वो बता रहे हैं सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। In third, the more heavily shaded part shows the region in which the electron density is greatest. थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर में क्या बता रहा है, ये शेडेड जो पार्ट बता रहा है, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये पॉइंट के ऊपर ज्यादा है, ठीक। क्यों ज्यादा है कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। सो देयरफॉर इंडक्टिव इफेक्ट it is the polarity or it refers to the polarity, or it is the in this effect polarity is produced in a molecule due to higher electronegativity of one atom as compared to another, ठीक है। डेफिनेशन किस तरह देंगे, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, दिस इज इफेक्ट इन विच पोलैरिटी इज प्रोड्यूस इन ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर में क्या होता है, पोलैरिटी या चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, किस वजह से होता है, वाई, बिकॉज वन ऑफ द एटम इट इज हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू अनदर, ठीक है। सो इंडक्टिव इफेक्ट इज इट इफेक्ट इन विच polarity is formed or polarity is created in a molecule due to one of the, why it is created, due to high electronegativity of one of the atom। एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसकी वजह से यहाँ पर इंडक्शन प्रोड्यूस हो जाते हैं, मॉलिक्यूल चार्ज हो जाता है, मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है, नॉन पोलर नहीं रहता मॉलिक्यूल। जैसा हम H2 देख रहे हैं, नॉन पोलर है, दोनों एक जैसे एटम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जैक्टली सेंटर के अंदर में है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर किधर भी शिफ्ट नहीं होंगी, कहीं भी अट्रैक्ट नहीं होंगी, एग्जैक्टली सेंटर में रहेगी। The carbon hydrogen bond is used as a standard. Zero effect is assumed in this case, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन इसको स्टैंडर्ड समझा जाता है और जीरो इफेक्ट समझा जाता है। एटम और ग्रुप्स विच लूज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कार्बन एटम, दे आर सेड टू हैव पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, या थोड़ी सी इसके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स ये दिख रहा है, ये जितने ग्रुप्स है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, CH3 ग्रुप, एथिल ग्रुप, मेथिल ग्रुप, आइसोप्रोपिल ग्रुप, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये सब क्या करते हैं, पॉजिटिव आई इफेक्ट एक्सर्ट करते हैं। सच ग्रुप विल बी रेफर्ड इन दिस बुक एज ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो वो क्या करते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन एक्सर्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ऑल अल्किल ग्रुप्स देयर आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। Such groups will be, another type of group are electron attracting groups.
या इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉविंग ग्रुप भी बोलते, विड्रॉ करना है निकालना वहां से। These are the electron withdrawing groups: fluorine, chlorine, bromine, iodine, hydroxy group, phenyl group, nitro group. These are electron attracting groups. They attract electron towards themselves. So they exert negative eye effect. Those atoms or groups which attract electrons away from carbon atom. ये क्या करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। So they are said to have negative inductive effect. So negative inductive effect, electron attracting effect, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यानी पॉजिटिव आई इफेक्ट। टर्शियरी एल्किल ग्रुप्स एक्सर्ट पॉजिटिव आई इफेक्ट। ये टर्शियरी एल्किल ग्रुप है हमारा 3, अगर यहाँ पर लगे हुए हैं कार्बन एटम, मेथाइल ग्रुप, दैट विल टर्शियरी ग्रुप, इट एक्सर्ट पॉजिटिव इफेक्ट देन सेकेंडरी। सेकेंडरी से ज्यादा होगा इसके अंदर में ग्रुप, ठीक है। क्यों ज्यादा होगा? 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर देयर, ठीक है। इसके अंदर में कम क्यों होगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक ही है, यहां पर भी एक ही है, ठीक। इस तरह टर्शियरी एल्किल ग्रुप इट्स एक्सर्ट पॉजिटिव इफेक्ट मोर देन सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज्यादा एक्सर्ट करता है प्राइमरी से, ठीक है। एन इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट कन्फाइंड टू पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड। व्हेन इंडक्टिव इफेक्ट इट इफेक्ट द मेनी कार्बन एटम्स, इसका असर बहुत सारे कार्बन एटम के ऊपर होता है। एन इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट कन्फाइंड टू पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड, इट डज नॉट अफेक्ट द पोलैरिटी ऑफ वन बॉन्ड ओनली, it is transmitted along a chain of carbon atoms, although it tends to be insignificant beyond the second carbon, ठीक है। ये क्या होता है? ट्रांसमिट होता है along a chain of carbon atom। ये चेन ऑफ कार्बन, यहां पर निगेटिव आई इफेक्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो यहां पर डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर डेल्टा पॉजिटिव, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव, तो यहां पर ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगी, ठीक है। इट इज ट्रांसमिटेड अलॉन्ग ए चेन ऑफ कार्बन एटम, बट it tends to be insignificant, it does not have significant role beyond the second carbon atom। second carbon atom के बाद इसका असर इतना ज्यादा नहीं पड़ता, ठीक है। why? because this electron attracting group is somewhat at long distance, ये थोड़ा लंबे डिस्टेंस के ऊपर आ जाता है, 2 कार्बन एटम्स आ जा रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर असर कम होता है इसका, ठीक है। द इंडक्टिव इफेक्ट of C1 and C2 is significantly less than effect of the chlorine atom on inductive effect of C1 upon C2 is significantly less than effect of chlorine atom on C1, ठीक है। the inductive effect result in a permanent state of the molecule, परमानेंट पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, and can be observed practically in the form of dipole moment। molecule will have dipole moment, ठीक है। इस तरह के पोलैरिटी मॉलिक्यूल के अंदर में होंगी। ये पोलैरिटी कैसे होंगी? परमानेंट होंगी। इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, कोई फॉरेन रिएजेंट के प्रेजेंस के अंदर में पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। क्यों? पोलैरिटी काहे की वजह से क्रिएट हो रही है? ओवरऑल बता सकेंगे आप? पोलैरिटी क्यों क्रिएट हो रही है? हेलो, क्यों पोलैरिटी क्रिएट हो रही है मॉलिक्यूल के अंदर में? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की वजह से हो रही। एक मॉलिक्यूल एक एटम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी वजह से पोलैरिटी क्रिएट हो रही है। और दूसरा क्या है? और वो एटम रहने वाला है मॉलिक्यूल के अंदर में, ठीक है, परमानेंटली रहेगा। इसलिए जब तक कि वो एटम के अंदर में वो मॉलिक्यूल के अंदर में रहेगा, तो जाहिर बात है कि
डायपोल मोमेंट उसके ऊपर रहेंगी, मॉलिक्यूल चार्ज रहेगा इसलिए उसकी एक डायपोल मोमेंट रहेंगी। ये छोटा सा है थोड़ा सा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अभी हमने देखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट पोलैरिटी मॉलिक्यूल के अंदर क्रिएट हो जाती है और किसी फॉरेन रिएजेंट की इसके अंदर में जरूरत नहीं पड़ती। तो अब देखिए ये इफेक्ट आ रहा है, इसमें फॉरेन रिएजेंट की प्रेजेंस में जो कुछ होना है वो फॉरेन रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है। ये ए बी है, डबल बॉन्ड है, ई प्लस हमने एक रिएजेंट लाया है फॉरेन रिएजेंट। जब वो फॉरेन रिएजेंट आ जाता है तो मॉलिक्यूल पोलर बनता है। अगर हमने फॉरेन रिएजेंट को निकाल लिया तो मॉलिक्यूल फिर नॉन पोलर बन जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट refers to the polarity produced in a multiply bonded compound। मल्टीपली बॉन्डेड यानी डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, व्हेन इट इज अप्रोच्ड बाय ए रिएजेंट। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें पोलैरिटी प्रोड्यूस हो जाती है मॉलिक्यूल के अंदर में। कैसे मॉलिक्यूल के अंदर में? जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। A molecule containing double bond or triple bond, it becomes polar. Why it becomes polar? Due to the aperture of the reagent or due to the presence of reagent। कोई reagent आप ला लेते हैं, इस reagent की वजह से polarity आ जाती है। ठीक है, when a double or triple bond is exposed to an attack of an electrophile E plus reagent, ये डबल बॉन्ड है, जब हम इलेक्ट्रोफाइल लाते हैं तो क्या होता है, टू pi electrons which form pi bond are completely transferred to one atom or other। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जब ये इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? लेकिन कब होता है? जब हम इलेक्ट्रोफाइल ला रहे हैं। The curved arrow shows displacement shift of the electron pair। The atom A has lost its share in the electron pair। ठीक है, ए ने क्या कर दिया, अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर में का शेयर था वो लूज कर लिया, एंड बी हैज गेन इट्स शेयर। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ए एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड बी एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। नोटिस दैट एरो पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉन्ड एंड टुवर्ड द एटम दैट गेन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, consider the example when an electrophile attacks carbon carbon double bond in an ethylene molecule। क्या होता है? We know that double bond is made up of one sigma bond and other pi bond। ठीक है, the electrons in the pi bond are quite exposed, बाहर होते हैं। Under the influence of electric field of positively charged electrophile, the symmetry of the molecular orbital is disturbed entirely in the favor of one carbon atom as shown। ठीक है, ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रोफाइल हम अप्रोच कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जा रही। ठीक है, जैसे अप्रोच हो रहा है, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल डिस्टर्ब द सिमेट्री ऑफ द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो सिमेट्री थी वो डिस्टर्ब हो चुकी है यहाँ पर, in the favor of one of the carbon atom, the ethylene। This is a negative charge to the carbon atom। This gives a